اور میں ان کرم فرماؤں بھائی خواہوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جن کے تعاون سے اور جن کے عطیوں سے یہ گلستان ہمارا آباد ہے اور ہم ملک کی عوام کی خدمت کر رہے ہیں. اور میں سلام کرتا ہوں ہندوستان کے ان سپاہیوں کو. سلام یعنی کہ دعا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کی ان پر رحمت ہو جو دیش کے لیے اپنی جان اپنا تن من لگا کر دیش کے عوام کی خدمت کے لیے ٹھہرے ہیں. اور سلام کرتا ہوں ان شہیدوں کو جو اپنے دیش اور اپنے ملک کی عوام کے لیے اپنی جان شہید کر دیے. اور خصوصی سلام کرتا ہوں ان ڈاکٹروں کو ان کے دوران ملک کی عوام کی خدمت میں جڑے رہے. سلام کرتا ہوں ان کرم فرماؤں بھائی خواہوں کو جنہوں نے اپنے عطیوں سے فیض عام کو سپورٹ کیا, فیض عام کا ہاتھ میں ہاتھ ملایا تاکہ ملک جب اس وقت پریشان تھا, ملک کی عوام بہت پریشان تھی, کھانے کے محتاج تھے, دوائیوں کے محتاج تھے, فیض عام کے ذریعے ان مصیبت زدہ پریشان حالوں تک ان کی ضرورت کا اشیاء پہنچایا. اور سلام کرتا ہوں ان وہ ہر شخص کا جنہوں نے اس وقت ملک کی عوام کے لیے آگے آئے, اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے بھی عوام کی خدمت کی. اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ فیض عام زائق فیملیز تک ہم نے مدد پہنچائی. بہرحال اللہ کا شکر ہے, اللہ نے ہمیں پھر ایک بار یہ باغ بابو خان اسٹیٹ میں منانے کا اللہ نے موقع دیا. بہت بہت شکریہ, آپ سب کا استقبال ہے. I was completed my intermediate with 86%. Now I am pursuing degree first year with BCom General. 75 years ago, India was ruled by British. Our brave freedom fighters have sacrificed everything. They did many revolts and they laid down their lives also. Then today we are celebrating 75th Independence Day. This is Sania Begum. I have done my intermediate exam and my NEET exam. I have secured 96.8, approx 97% in my intermediate exam. And done with my NEET, waiting for the results. So every 15th August is celebrated as Independence Day. The word independence means the freedom. On this day we got the freedom from other country who ruled our country since many decades, many years, and many decades. It is possible by the sacrifice of the freedom fighters. The highlighting ones are Bhagat Singh, Rani Lakshmi Bai, and many more. Thank you. سب سے پہلے میں ہمارے چیف گیسٹ یاسمین ریاض میڈم, رضوان حیدر صاحب, سید حیدر علی صاحب اور ہمارے والد اور ہمارے مربی افتخار حسین صاحب, آپ سب لوگوں کی وجہ سے آج ہم یہاں پر جمع ہیں. انشاءاللہ فیض عام ٹرسٹ کا بھی آج یہ سال میں 2022 میں 40 ایئرس ہو چکے ہیں. الحمدللہ جب سے میں فیض عام ٹرسٹ میں یہاں پر جو خدمت خلق کے لیے یہاں پر آپ لوگوں کی خدمت کر رہا ہوں, اور دیکھتا ہوں کہ کئی اسٹوڈنٹس یہاں سے کمپلیٹ کر کر جاتے ہیں اور لوٹ کر نہیں آتے. تو سب سے بڑا ہمارا مسئلہ یہی ہے کہ ہم جو اسٹوڈنٹس یہاں سے کچھ لے کے اٹھیں تو کچھ دینے کا بھی ارادہ کر کے اٹھیں. ڈونر بننے سے پہلے آپ لوگ یہ سوچیں کہ ہم ہمارے منزل میں, ہمارے کامیابی میں کہاں تک ہم اپنے آپ کو اپنا کیریئر کا ڈیزائن بنا سکے, ڈیزائن یور اون فیوچر بنا سکے, اس کے اوپر ہم کو سب سے پہلے کام کرنا چاہیے. اب رہا سوال آزادی کا, 75 ایئرس ہو چکے ہیں اب تک. ہم دیکھتے ہیں کئی اسٹوڈنٹس مسلمس ہو, ہندوز ہو, سکھ ہو, عیسائی ہو, کئی شعبوں میں ہیں. ہماری قوم کو بھی چاہیے کہ ہم کچھ ہمارے قوم کا حصہ بنیں, اور فیض عام ٹرسٹ کو جتنا آپ لوگ کوآپریٹ کریں گے, کتنا اپنی محنت سے اپنے گول کو اچیو کریں گے, تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ لوگ بھی اسٹار بنے یہاں سے. Very happy Independence Day to all of you. ابھی جو سب کی اسپیچز سنی اس سے سب
लोगों ने यही कहा कि हम फैज़ आम का शुक्रिया अदा करते हैं और फैज़ आम हमारे को हेल्प कर रहा है। तो फैज़ आम का मकसद सिर्फ आपको एजुकेशन देना नहीं है, उनका मकसद है कि आप कुछ करके एक सोसाइटी में अपना मुकाम बनाएं, एक गोल के साथ पढ़ें। खाली पढ़ के और चले गए शुक्रिया अदा करके, ये सिर्फ उसके लिए फैज़ आम का मकसद ये चलाने का नहीं है। एजुकेशन डेफिनेटली है कि आप लोग पढ़ें, मगर विदाउट हम चाहते हैं कि पढ़ के आप ऐसा मुकाम हासिल करें कि ताकि और पॉपुलर हो फैज़ आम और पता चले कि यहाँ क्वालिटी है। क्वांटिटी से हमको वो नहीं करना है कि हम 1000 बच्चों को पढ़ा रहे हैं या 500 बच्चों को पढ़ा रहे हैं। में कुछ आगे बढ़ के कुछ अपना मुकाम आप बनाएंगे तो आप भी आगे जाके, हमारा मकसद ये है कि आप भी ऐसे फिर अपने अंडर में कई लोगों को पढ़ाएं, उनको आगे बढ़ाएं और इतना आप कैपेबल हो जाएं कि या तो फैज़ आम को ही आपको से जुड़ जाएं और उनके साथ मिलकर काम करें। वो मकसद जहन में रखिए। आज़ादी के 75 साल के बाद हम कहाँ हैं, वेयर वी स्टैंड, कि हम आज तक उतना क्यों नहीं बना पा रहे अपना मकाम, क्योंकि हमारे को हार्ड वर्क, वी आर नॉट डूइंग इनफ हार्ड वर्क। तो वो बहुत ज़रूरी है कि आपको अपनी क्लास में, अपने स्कूल में या कॉलेज में आप हमेशा उस बच्चे के बारे में सोचिए जो टॉप करता है और उससे इंस्पिरेशन लेके ये दिमाग में लाइए कि हम क्यों नहीं कर सकते, हम वहाँ क्यों नहीं पहुँच पा रहे, क्यों पीछे रह जा रहे। तो वो उस एक्स्ट्रा एफर्ट की बहुत ज़रूरत है और जब तक कि आपको वो अंदर से वो इनर फोर्स आप नहीं लगाएंगे वो नहीं हो पाएगा कि यहाँ से फीस मिल गई, वहाँ स्कूल में जाके अटेंड करके आ गए और रट के आपने मार्क्स दे दिए। वो जो आपने पढ़ाई करी है वो एप्लीकेबल भी होना, आपको प्रैक्टिकली भी उसके बारे में मालूम होना। खाली रट के आप पास होने से कोई फ़ायदा नहीं है। यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर स्टडीइंग, तो वो प्रैक्टिकली भी यू शुड अप्लाई दैट। तो हम यही उम्मीद करते हैं और दुआ करते हैं कि आप लोग कोई मकसद को लेके आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह और एक गोल कायम करके और कामयाबी हासिल करेंगे। थैंक यू। बच्चों और बच्चियों, आज इस मौके पर मैं सिर्फ इतना मैसेज दूँगा कि हम आज़ादी क्यों मनाते हैं। मुझे बताइए, 75 में ये आज़ादी बोलते हैं हम, तो काहे से आज़ादी हुई हमारे को? ब्रिटिशर्स। तो ब्रिटिशर्स क्या करके गए थे जिससे हम आज़ादी ली? उनको ग़ुलाम बना के रखे थे। मगर आप ये नहीं समझते कि उनके दौरे हुकूमत में डिसिप्लिन कितना अच्छा था? तो क्या हम की अच्छाइयों को नहीं लेंगे? यही हमारे लिए अफसोस की बात है कि हम आज़ादी तो बोलते हैं, आज़ादी हुई, लेकिन हमको अपने नफ्स की आज़ादी चाहिए, अपने किरदार की आज़ादी होना चाहिए, अपने शऊर की आज़ादी होना चाहिए। कितने हम जो करते हैं, अगर हम में से हर एक इसके ऊपर गौर करे कि हम क्या हैं, क्यों हम अच्छा डिसिप्लिन पैदा नहीं कर सकते, क्यों हम टाइम मैनेजमेंट नहीं कर सकते, क्यों हम वो ब्रिटिशर्स के वैसे आगे बढ़कर कुछ बन सकते हैं, तो फिर हमारी आज़ादी आज़ादी। वरना मैं समझता हूँ कि आज़ादी होने के बाद भी हम जो है वही ग़ुलामी, बल्कि उससे बदतर ग़ुलामी में हम मुब्तला हैं। तो हमको मेरा बस मैसेज आप लोगों को यही है कि आज़ादी के मौके पर हम अपने आप को जो है देखें, अपने अंदर झाँकें कि हम जो है कितना जो है जो लोग जो भी फौजियाँ जो लड़कर हमको आज़ादी दिलाए हैं, उनका मकसद क्या था और हम क्या हासिल कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी, ज़्यादा बहुत दरकार होगा, इसलिए मैं आपको बस इतना ही कह रहा हूँ कि उस पर गौर करें, अपने शऊर को बेदार करें, अपने कैरेक्टर को ताज़ा रखें और नेक चीज़ें सोचें और आगे बढ़ने की कोशिश करें ताकि हमारा मुल्क वाकई तरक्की कर सके और लोग जो है फिर बोले कि वाकई हिंदुस्तान देखिए आज किधर से किधर हो गया। वरना हम लाइट्स जला के करके आज़ादी करें, ज़रूर करिए, खुशी मनाइए, लेकिन अंदर से अपने जिस्म को, अपनी रूह को भी जो है मुनव्वर करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। एक शेर से इब्तिदा करता हूँ मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया।
आप लोग एक अकेले नहीं है, ये सोचिए कि आप लोग अकेले है ही नहीं, आपका पूरा कारवान है, बशर्ते कि आप साथ लेके चले उनको। ये नहीं कि मैं ये कर लिया मैं वो कर लिया, ऐसा नहीं हो सकता। जब तक के लोग साथ नहीं रहे आपका सफ़र भी कटता नहीं, तकालीफ भी ज़्यादा होते, कोई मददगार भी नहीं होता। बस सिर्फ ये जहन में ख्याल रखें कि मेरे बाजू वाला भी मेरे साथ चले साथ में, ताकि हम में ताकत आए और हिम्मत आए। ये दो चीज़ खास है इंसान की फितरत में कि कोई साथ हो और कोई बढ़ावा देने वाला हो। चाहे हम गिरे पड़े कुदे को उठाने वाला हो ना हमारे को, तो हमारी तरक्की बढ़ती है। तो आज जो इंडिपेंडेंस है, इंडिपेंडेंस अपनी जगह पे है। आप कितने आज़ाद हुए, किस चीज़ से आज़ाद हुए? अपनी सोच से। जो नेगेटिव सोच है हमारी, हम उससे आज़ाद होना चाहिए। हमको ये नहीं होता वो नहीं होता, सब कुछ हो सकता है, हिम्मत चाहिए, और वो आप लोगों में है। हमारे जो भी लोग हैं फैज़ान से जुड़े हुए, मुझे मालूम है कि उनमें बेहद हिम्मत है और उनकी कोशिशें भी काम आएंगी। और मैं तो देख रहा हूँ जो बैठे हुए सामने, मैं अपने आप को बहुत कम समझ रहा हूँ सबके सामने, बच्चों के सामने, कि मैं छोटा सा आदमी हूँ इनके मुकाबले में। अल्लाह आप लोगों को तरक्की दे और आज़ादी मनाने की हिम्मत अदा करे। आप सबको 75वीं आज़ादी की मुबारकबाद देता हूँ। अभी जो समीना जो यहाँ के स्टाफ मेंबर हैं, उन्होंने अपने ख्यालात में एक बात कही कि हमको आज़ादी मिल गई है तो हम अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजार सकते हैं। मैं समझता हूँ कि ये गलत बात है। आज़ादी का मतलब ये नहीं कि आप जो चाहे करते रहें। आज़ादी एक रूल्स एंड रेगुलेशंस के दायरे में रहकर आपको मुल्क में हो या आपके ऑफिस में हो या आपके घर में हो, उन रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ आप जीना चाहिए आपको। ये नहीं कि आप अपनी मर्जी करते रहेंगे तो पूरा निज़ाम ख़राब हो जाता है। मेरे ख्याल से सब में मोस्ट इम्पॉर्टेंट 3 चीज़ें हैं किसी भी इंसान की ज़िंदगी को कामयाब करने के लिए। पहली चीज़ जो है वो डिसिप्लिन है, दूसरी चीज़ है सैक्रिफाइस है, और तीसरी चीज़ है एक्सपेक्टेशन है। और अगर आप डिक्शनरी में भी देखें तो ये तीनों लफ्ज़ पहले आते हैं और उसके बाद ही सक्सेस आता है लास्ट। तो जहाँ तक डिसिप्लिन का ताल्लुक़ है, जैसे आप अपने ज़िंदगी को पहले आप अपने आप को देखकर एक डिसिप्लिन आप रखिए कि जैसे घर है आपका, क्या टाइम पे उठते हैं, क्या चीज़ें आपकी इम्पोर्टेंट है, किसको प्रायोरिटी देना है। फिर एक ऑफिस में आप काम कर रहे हैं या एक आप स्टूडेंट हैं, कोई इंस्टीट्यूशन को जाते हैं आप, तो वहाँ कैसा डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं। टाइमिंग्स हैं, इतने पीरियड्स होते हैं, इतने पीरियड्स आप अटेंड करना है। वैसे ही ऑफिस के अलग डिसिप्लिन्स होते हैं, वहाँ पे भी वक्त की बहुत अहमियत है। फिर आप डिसिप्लिन के बाद सैक्रिफाइस है। जब आप अपनी ज़िंदगी में जस्तजू कर रहे हैं, जो भी चीज़ें करना चाह रहे हैं, तो काफ़ी चीज़ों को आप सैक्रिफाइस करके ही वो चीज़ों को आप जो है अचीव कर सकते हैं। जैसे आजकल जो दौर है जिसमें सोशल मीडिया है, जिसमें टेलीविज़न वगैरह के जो आपको अट्रैक्शंस हैं आज के बच्चों में, तो वो सब चीज़ों को आप तर्क करके आप अपनी पढ़ाई पे ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, यानी कि वो भी एक सैक्रिफाइस कर रहे हैं। अब रहा एक्सपेक्टेशन की बात, तो जितनी भी मेरी ज़िंदगी है उसका जो तजुर्बा है वो ये बताता है कि आप जो भी सही है, जो भी आपकी कैपेसिटी है, आप वो करते रहिए, बट आप किसी से कोई एक्सपेक्टेशन मत रखिए। क्योंकि अगर आप एक्सपेक्टेशन रखकर कोई काम करते हैं और वो आपके एक्सपेक्टेशन पे नहीं उतरता है तो आपको बहुत तकलीफ होती है। अगर आपके एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे और आपके लिए अच्छा हो रहा है तो आपकी जो है हिम्मत अफजाई हो जाती है। इसी की वजह से ये सब चीज़ें 3 जो बताया हूँ आपको, डिसिप्लिन, सैक्रिफाइस और एक्सपेक्टेशन, ये चीज़ों को अगर आप सही तरीके से
फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली सक्सेस, कामयाबी, ये सब चीज़ें आपको ज़रूर इंशाल्लाह मिलेंगी। और एक अहम बात यह है कि कोई भी चीज़ करने से पहले एक, जैसे हम कोई कारोबार चालू करना चाह रहे हैं तो उसके लिए एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हैं कि हमको कितना सरमाया इसमें लगाना है, इससे हमको आमदनी कितनी होने वाली है, अखराजात क्या हैं। अगर हम इन सब को पहले से अगर वर्कआउट कर इसके ऊपर काम नहीं करें और बस खाली हमको करना है बिजनेस, लेके पैसे उतर गए, उसमें नुकसान हो रहा, मुनाफा हो रहा, कोई हमको उसकी बात मालूम नहीं। तो एक रोड मैप बनाइए, एक प्रोग्राम करिए, उसके तहत अगर आप काम करेंगे तो आपको हर स्टेज पे मालूम होगा कि कहाँ पर हम गलती कर रहे हैं, कौन सी चीज़ों को हम इम्प्रूव कर सकते हैं, कहाँ पर जो है शॉर्टफॉल्स हैं उसको कैसे मुकम्मल करने पर जो गोल हम सेट किए हैं वहाँ तक हम कैसे पहुँच सकते हैं। आइंदा आप लोग अपने अपने जो फील्ड्स आप लोग चूज़ किए हैं, मैं समझता हूँ कि आप अपने इंटरेस्ट के लिहाज से ही लिए होंगे, ना कि कोई आपके वालिदैन या आपके दोस्त। कभी कोई बता रहे थे कि कोई एक दोस्त कॉमर्स की लाइन में जाता है तो उनका पूरा ग्रुप कॉमर्स करने के लिए चले जाता है, उनको उसका शौक़ हो ना हो। तो आप लोग जो भी अपने फील्ड्स चुने हैं, आप सब अपनी अपनी फील्ड्स में कामयाबी हासिल करें, यही मेरी दुआ है।